Hi, bonjour. Uh, Welcome to Bharat Times webinar. Today's topic is transic healing, and the presenters with us are Dr. Ram Sharma. He's the Associate Professor and Head Department of English at JV College in UP, India. Myself, Monika, Spolia, and Hina, Dhir. She's in early education. She has BSc and BEd. She is in Vancouver, Canada. We have Jayshree Patel with us as well today. She's from Montreal, and Manjit Singh, he's from Ottawa. So we'll be joining the discussion for Transic healing. और हीना जी शशिकल अंकल जी Okay. शशिकल अंकल जी शशिकल अंकल जी शशिक Okay. So let's see on this topic of transic healing. What it is basically healing through trance, right? So that would be like you go into a trance and you heal to yourself. That's just very simplified version of it. But okay, I had experienced it. I did some research on it as well. That's at that time I was in India. So the way it works is it's self-healing process. Okay. This one particular one, I'll walk you through it a little bit. So there was a temple in India, and the way they would do it is the people go there who have troubles and stuff like that, and they have this whole system set up there. You go, you rent a room there, and one of the condition for going there is another person has to go with you. You know, you can't just be there alone, because the thing is, the person you live with, somebody from your family, because it has to follow through. And the only way it can follow through this process of healing is if somebody's there, and so that they will know what you require, what you need, what is part of the healing process. And if you go back to the same situation at home, it's not going to work, right? So they would either have their sister, brother, parents, friend, whoever, somebody there with them and stuff, and they will actually register so that they will be part of the process, and they would have to attend the temple every single day. So what I found in that was the social and moral order was at very high, and that was very important in that it, because of you had to be at the temple at a certain time, and you know, every day and stuff, and you had to pray. That was one part of it. So there was some kind of like order in there that you had to be up at that time, that routine part. So that came in handy. Praying, and how the praying was done, they did not ask you exactly what your problem is or the details or anything like that. They would say you would go in the temple and you would go into in front of the deities, and you will state your problem. And you would say, okay, you could do that by yourself. You did not have to tell that to the priest or anybody else. And or you could write it down on a piece of paper and, you know, read it there. You could even didn't even have to read it out loud, and then you could just leave the paper there and stuff. So, and then it's basically, it invokes you because you're being like very truthful, transparent, and the healing comes from within. What do you need? So a lot of people, then they would have the in the afternoon, in the morning will be the temple prayer, and you will state your problem, this and that. And in the afternoon, they'll have the court. They called it the court in the temple, and they will have people there, especially the problematic ones. Some of them went in trance, they literally. And as the music went on, and the bhajans, the devotional songs went on, and they would go into trance, and they did weird, like to us, they will seem weird things, but that's what they felt like doing, you know, like they basically, they got to be themselves completely,
right? So what they felt and stuff like that, if they said anything out loud, so everybody else was, very observant. They kept an eye on what was going on. And then in the evening, again, they were at the temple praying and stuff like that to wrap it up and then go back. Another important thing in that one was their food intake. Whoever was, especially, they would recommend this to everybody, but especially the person in trouble who had any problems, they would recommend to eat boiled food. Maybe use salt and pepper on it. And okay, they mention things like, okay, white things, different problems, they will recommend different things. These were recommended by the priest there. White things are not allowed, meaning maybe milk or something is not allowed. Red things are not allowed, meaning the red pepper or something is not allowed, or tomatoes, things like that. So it was very simple, healthy food that they were intaking at the time. And along with just the food there, it's again, the order as well, their routine, their daily routine, and also confronting their problem in their own way. So that was basically realizing what the problem is and then dealing with the problem itself. And for that purpose, that's why another person was deemed necessary for the other person to be there as well, so that they will also know what the problem is or what it is about, so that they can be helpful once that person returned home. So that's one type of mainly the transic healing, and it revolves around the routine, order, praying, which is also similar to, let's say, we sit in meditation or relax, etc., and confronting your problem, that's psychologically as well. And the food that makes it physical and mental is being around people and being able to open up to people around you too, and who are not just making fun of you, but who are actually will listen to you, because everybody is there in that situation somehow, some way. So so you're mentally, physically, spiritually, emotionally, it's a healing process all together at once in a place. And that I found was just amazing. And in the evening, people visited each other, or they met outside in the park, and in the temple, anywhere. It's a huge place. So I thought that was very, very interesting. Was that actually recommended by my prof as well. So very nice. So that's one part of the, I saw like one full-fledged what I would say, put in order, in place, happening place for the transic healing. So that was interesting. Other meanings of transic healing: basically, you go in a trance and heal yourself. And another example could be of meditation. As I mentioned earlier, so just go into meditation. That's also a way of putting yourself in a trance. And there are many different versions of this. So that's what my take is on transic healing. Or the split personality can come into it too, but then that is not healing. That's a way of that's a defense mechanism one puts forward. They go into different personalities, etc. But in a way to deal with it all would be that process of social motor ordering and healthy diet, be self-realization, and find yourself in this similar environment, like-minded people, etc. And that goes a long way towards healing. So that's my take on transic healing. Now I would like to invite Dr. Ram Sharma, please. Hello, जी Dr. Ram Sharma. नमस्कार. Am I audible? You are, yes. Thank you. Okay. Transic healing, if we study is one part, and that is very deeply related with the hidden power of numbers or numerology. Actually, if you go through on Google, you will find that this numerology or transic healing
was started in Greek or Egypt or in some other countries, but we are not trying to search our own ancient scriptures. अगर हम देखें अपने पुराने पुराने ग्रंथों को तो उसी में सब चीज डिसाइड की हुई है। आप देखेंगे 12 जो है महीने डिसाइड किए गए, वो 12 कैसे आए, ऋतुएं डिसाइड की गई। इवन यहाँ तक होता था कि जो स्त्रियों के नाम होते थे उनके नाम के आगे कुमारी या कौर लगाया जाता था। वो भी ये था कि हाँ देवी लगता था नाम के आगे, कि उनके अंदर जो एक हीलिंग पावर है देवी की या गोडेस की, वो खुद ब खुद ट्रांसिक हीलिंग के थ्रू उनके नाम में ऐड हो जाए और वो पूरे जीवन चलती रही वो ट्रांसिक हीलिंग। इसी तरह से व्यक्तियों के जो नाम है वो रखे जाते थे, वेद प्रकाश या गंगादास, तो उनमें जो ट्रांसिक हीलिंग है उस गंगा माता की या वेदों की, वो उनके अंदर ट्रांसफॉर्म होके मौजूद रहे। तो ये न्यूमरोलॉजी में अगर हम जाएं, इट इज ए हिडन पावर ऑफ नंबर्स। हम अब अगर ग्रेट पर्सनैलिटीज का न्यूमरोलॉजी का आप स्टडी करें तो उनका डेट ऑफ बर्थ या तो 1 मिलेगा, किसी भी महीने की 1 तारीख, या 11 मिलेगी या 22 मिलेगी। इस तरह के जो अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ ये है तो दे विल सर्टेनली गेट द हिडन पावर ऑफ द नंबर 1, 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 4। उनके अंदर जो है दे विल नॉट ओनली हैव द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, good spiritual power, they are also bold, purity of heart, ये सब चीजें उनमें मिलेंगी। इसी में मैं आपको एक स्टडी में मतलब किया था, स्वामी विवेकानंद जी का नाम के अक्षरों का भी हम न्यूमरोलॉजी में आता है, ट्रांसिक हीलिंग में आता है ये सब चीजें। तो इसी में हम देखें स्वामी विवेकानंद जी का डेट नंबर जो है 12 जनवरी है, 1 + 2 = 3। तो उनके अंदर क्रिएटिविटी, बोल्डनेस, लीडरशिप, स्पिरिचुअल पावर्स, ये सब उनके अंदर आनी है। स्वामी विवेकानंद में देखें तो दे है स्वामी, उसमें 5 अक्षर हैं, विवेकानंद दे 7 अक्षर, सेम प्लस = 12, 1 + 2 = 3। तो दिस इज ए साइंस, प्योर साइंस। अभी आपने पहले आपने देखा होगा कि हमारे जो कैलेंडर में 10 महीने होते थे, 10 महीने पहले थे, उसके बाद 12 किए गए। वो अक्टूबर जो था वो 8वां महीना था, उसे 10वां महीना बनाया गया। यू माइट बी वेल अवेयर, and that was a kind of a transic healing or a power of the universe to gain that power within us। हमारे अंदर वो चीज आए, इसलिए हमने वो प्रयास किया है। इसी तरह से हम देखें, हम आगे हम वर्ड का हम स्टडी करें ट्रांसिक हीलिंग में, देयर इज इफेक्ट ऑफ नंबर्स, कि किस नाम किस अक्षर से आपका नाम स्टार्ट हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अपना नाम चेंज कर लेता है, उसकी सक्सेस रेट बढ़ जाता है। हमारे यहाँ पे प्रसिद्ध जो है फिल्म मेकर रहे हैं सुभाष घई, वो के अक्षर से ही हमेशा बनाते रहे, या राकेश रोशन जो की जितनी फिल्में मिलेंगी वो के अक्षर से मिलेंगी और वो हिट भी होती थी। सो दैट वाज ए काइंड ऑफ न्यूमरोलॉजी एंड ट्रांस हीलिंग एंड ट्रांस सक्सेस। अगर हम इसे एक प्योर साइंस की बात करें तो हमारे यहाँ मंत्र आता है सबसे पहले, मंत्र के बाद जो है तंत्र आता है, और तंत्र के बाद यंत्र आता है। यंत्र में ये न्यूमरोलॉजी होती है, पावर ऑफ नंबर्स। यंत्र में क्या है, अक्षर दिए होंगे 1, 5, 4, यंत्र बना के दे देते थे, और उसकी जो यूनिवर्स की ट्रांसिक हीलिंग पावर एक जगह कलेक्ट हो जाती थी, और वो हीलिंग, उस हीलिंग के द्वारा व्यक्ति जो है स्वस्थ हो जाता था, अपनी समस्याओं से बाहर निकल जाता था, पॉजिटिव पावर उसे मिलती थी। सो दीज आर द ट्रांसिक हीलिंग्स। अगर हम वैसे बात करें तो मेडिटेशन भी यही है कि हम जो है यूनिवर्स या कोस्मोस की जो एनर्जी है वो अपने शांत भाव से अपने अंदर उसे ग्रहण करें। कोई शब्द ओम है, वो भी एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स है, कि हम वी आर टेकिंग द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स विद इन अस एंड वी आर ट्राइंग टू रिजुविनेट आवरसेल्व्स बाय दीज ट्रांस हीलिंग पावर्स। तो ये धीरे धीरे एक साइंस के रूप में डेवलप हुआ। और अगर हम सजेस्ट करूंगा मोनिका जी से कि हम एक यंत्र के ऊपर भी एक कार्यक्रम हम करेंगे कि यंत्र क्या होता है, यंत्र की कैसे काम करता है, और ये इसकी हीलिंग पावर क्या होती है। आपने देखा भी होगा, आप समझ नहीं सकती हैं, कल्पना नहीं कर सकती हैं कि बहुत छोटे से यंत्र बना दिए जाते हैं और कितने इफेक्टिव वो होते हैं।
और यही यही चीजें थी जो ब्रिटिशर्स भारतवर्ष में आए और उन्हें लगा कि हम अगर ये चीजें भारतवर्ष में मौजूद रही तो हम यहाँ शासन नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे इन सब चीजों को उन्होंने सुपरस्टिशियस कहा, अंधविश्वास कहा, लोगों को इन चीजों से दूर किया और तब वो अपनी कल्चर को थोपने पे यहाँ पे सफल हुए। लेकिन आज हम देखें कि वही हम हमारे यंत्र मंत्र तंत्र की तरफ जा रहे हैं, गायत्री मंत्र का वो पाठ कर रहे हैं, होली फायर सेरेमनी वो अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब क्या है कि वही सुपरस्टिशंस को जो हमें सपेरों का देश कह के हमें जो बुला दिया गया और आज वो अप्लाई कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसमें सत्यता थी, उनमें सनातन पावर थी, उनके अंदर प्योर साइंटिफिक रीजंस थे। वो ऐसे ही नहीं थे कि ये चीजें ऐसे ही बना दी गई। हर चीज का एक मीनिंग होता था, एक वर्ड रखा जाता था, पंडित जी को बुलाया जाता था। इवन जो है आपके दोनों जन्म पत्री से मिला के जन्मदिन तो हम डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ भी वो एक प्योर साइंस था कि वो पहले ही डिसाइड कर लेते थे कि गर्भाधान या पुष्पन संस्कार कब किया जाए या शादी की कौन सी डेट रखी जाए, कौन सा दिवस उचित रहेगा, किस समय वो किया जाए। इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता था। दीज आर प्योर साइंस एंड प्योर ट्रांसिक न्यूमरोलॉजी सिस्टम विच वी कैन नॉट डिनाई। आज भी हम देख रहे हैं कि हम भारतवर्ष के, मुझे लग रहा है पूरे विश्व में समय का पूछा जाता है कि कौन सा समय अच्छा रहेगा, प्रेयर करने का कौन सा समय उचित है। इवन यहाँ तो हमारे यहाँ नेता लोग भी जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस सनातन धर्म को, वो भी पर्चा भरने से पूर्व पंडित जी के पास जाके समय कि कौन सा समय कौन सा दिन उचित रहेगा। और नाम की ये न्यूमरोलॉजी में नाम का जो इतना इफेक्ट है, पावर ऑफ जो है वर्ड्स है, वो आप डिनाई नहीं कर सकते उस चीज की। इसी तरह से 2 नंबर होता है, 2 पावर ऑफ नंबर 2, यानी 1+1 करें या 2+2 करें इक्वल टू 2। तो उसमें क्या है, पर्सन वो कंप्लीट पर्सनैलिटी का मालिक होता है। ही कैन हैव creative powers, ideas, and he can lead the world and he can be a good leader. इसी तरह से हम नंबर 3 की बात बुक करें तो that person have the spiritual power, leadership, good mind, memory। इसी तरह से 4 नंबर की बात करें तो पर्सन जो है वो अटैच टू द ग्राउंड होगा, उसके अंदर जो है ट्रायंगल होगा स्पिरिचुअलिटी और मेटेरियलिज्म दोनों का। 5 नंबर के अंदर जो है डिफरेंट नंबर है, उसके अंदर जो है हम जो है एक स्वस्थ व्यक्ति, बलवान बलिष्ठ व्यक्ति हमें मिलेगा। So these are the powers of the numerology or trans healing powers that our ancient rishis or swamis they have given us this ancient wisdom to make us lead a good life full of happiness, full of health, full of wealth। सबसे पहले हमारे ग्रंथों में यही कहा गया कि आपका जो सबसे बड़ा धन आपका जो है निरोगी काया है, कि आपके जो शरीर अगर पूर्ण रूप से स्वस्थ है तो इसका मतलब आप सबसे धनवान व्यक्ति हैं। और आपको क्या चाहिए? स्वस्थ रूपी धन आपके पास है। लेकिन आज हमने जो है इस कागजों के नोट के पीछे भाग भाग करके अपनी पीस ऑफ माइंड भी खत्म कर दी है, अपनी हेल्थ भी खत्म कर दी है, वातावरण को भी प्रदूषित कर दिया है। और हम एक भागे जा रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि हम हील कर लें अपने आप को। इस वातावरण में ये बड़ा एक चैलेंजिंग टास्क हो गया है हम लोगों के सामने कि हम भाग दौड़ भी करते रहें और अपनी जो है बॉडी को भी स्वस्थ बनाए रखें। ये दोनों चीजें एक साथ कभी नहीं चली हैं, ना चलेंगी। और ये मान लें कि हम अभी थोड़ा सा हीलिंग कर लें, आंख बंद करके कुर्सी पे बैठ जाएं, तो वो चीज नहीं होती है। वो योग भी अष्टांग योग के साथ नहीं जुड़ता है। यानी 8 चीज में से आप एक चीज कर रहे हैं, आसन आप कर रहे हैं, तो 1/8 ही आपको प्राप्त होगा। बाकी 7 चीजें भी आपको करनी पड़ेंगी। प्राणायाम, प्रत्याहार, समाधि, क्या आप पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, आपके वातावरण आपके चारों तरफ कैसा है, किस तरह के व्यक्तियों में आप बैठ रहे हैं, आपके सोच विचार क्या है, आपका अंतःकरण में क्या चल रहा है। ये सब चीजें आपकी हीलिंग, आपको एक हीलिंग, एक हीलर की तरफ आपको लेके जाएंगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इन सब चीजों के साथ रहें, अपने आप को होलो ना बनाएं, खोखला ना बनाएं, और फिर इन चीजों को खोजने का प्रयास करें कि हम जो है अगर 15 मिनट जो है आंख बंद कर लें या मेडिटेशन कर लें तो हमें बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा। बहुत बड़ी हानि भी नहीं होगी, लेकिन बहुत बड़ा लाभ भी नहीं होगा। दिस इज ए कंप्लीट प्रोसेस, अष्टांग योग जो कहा जाता है, उसी से ये सब चीजें जुड़ी हैं। आगे जो है न्यूमरोलॉजी आई, यंत्र मंत्र तंत्र, ये सब आपको स्वस्थ बनाने के लिए, आपको पीस ऑफ माइंड,
सर्वे भवन्तु सुखिनः के लिए ये सब चीजें क्रिएट की गई। तो ट्रांसिक हीलिंग जो कोसमोस या यूनिवर्स से उतरती हुई आपके बॉडी के अंदर आ रही है, आपको स्वस्थ बना रही है, आपके अंदर पीस ऑफ माइंड क्रिएट कर रही है, आपके अंदर क्रिएटिविटी जगा रही है, आपको एक जो है स्वस्थ शरीर के साथ स्वस्थ मस्तिष्क भी प्रदान कर रही है, स्वस्थ विचार प्रदान कर रही है। तो ये चीजें बहुत आवश्यक है। और जैसा मैडम ने कहा कि हमें हीलिंग की आवश्यकता पड़ती है, तो तरह तरह की हीलिंग हमें करते रहना चाहिए, वो रेकी हो, ट्रांसिक हीलिंग हो, तंत्र मंत्र यंत्र हो, पोलीफायर सेरेमनी हो, अपने अंदर की अंतःकरण की यात्रा हो, या किसी नदी के किनारे बैठकर अपने आप में खो जाना। ये सब चीजें हमें करनी पड़ेंगी, समय निकालना पड़ेगा। हालांकि आज चारों तरफ शोर ही शोर है, और इस शोर में कहीं ना कहीं आदमी खो सा गया है, वो अपने आप को खोजने का प्रयास कर रहा है। इसी समय पे मैं अपनी एक कविता पढ़ना चाहूंगा, एक हिंदी में मैंने लिखी थी। आदमी वादों का आदी हो रहा है, बीज बर्बादी के अपने बो रहा है, नौजवान हालात का मारा हुआ है जो भरे एहसास दिल पर ढो रहा है। मौत पर इंसानियत की शान ही से शहर की सड़कों पे मौसम रो रहा है। गुफ्तगू करने लगा वो बहकी बहकी, दोस्त क्यों उसे जगाने पे तुले हो, वो परिंदा साग पर जो सो रहा है। वो सो रहे हैं, हम तो सोते हुए को जगाने का प्रयास कर रहे हैं मोनिका जी। जो लोग सो रहे हैं सदियों से, उन्हें उनकी नींद को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपको भी लग रहा है कि आप भी फोन कर रही हैं सुबह उठते ही कि लोग जाग जाए, कार्यक्रम में आ जाएं, थोड़ा सुन लें। तो हमारा क्या प्रयास हो रहा है, जगाने का प्रयास हो रहा है जो साखों पर सो रहे हैं। हम नहीं हारे जो हिम्मत मंजिल पा जाएंगे, कामयाबी के मंजर सामने आ जाएंगे। आने वाली है कयामत, हर कोई कहने लगा है अब, साके हस्ती पर खिले सब फूल मुरझा जाएंगे। आप म्यूट पे चले गए हैं डॉक्टर शर्मा। धीरे धीरे नष्ट हो रही है। जुगनुओं की जात अपने आप में कुछ भी नहीं, ये मगर चमकेंगे जब भी नूर फैला जाएंगे। आदमी वादों का आदी हो रहा है, बीज बर्बादी के अपने बो रहा है, नौजवान हालात का मारा हुआ है जो बड़े एहसास दिल पर ढो रहा है। ये यूथ का आज हमारे सामने हालात हो गए हैं कि वो क्या करे, आगे बढ़े कि पीछे हटे। इसी तरह से एक कविता अंग्रेजी की पढ़ना चाहूंगा। वी आर सच पीपल, वी आर सच पीपल, वी आर सच पीपल who mix sweetness inside the air. We are such people who will write indelible words on the cruelest heart of time. We are such people who feel life a swan song, even in the cold icy fingers of death. We will fly from this world into other worlds too. We are such people whom you can kill, but we will again rise from our ashes like the bird phoenix. We are such people whom you can burn, but we will spread into the sky like incense. We are such people who are present in every atom of the universe. प्रत्येक कण कण में हम मौजूद हैं, ईश्वर मौजूद है, उसी के हम सब अंश हैं। इसी तरह से हम अपने हीलिंग थॉट्स, अपने हीलिंग विचार, अपनी हीलिंग भावनाएं हम फैलाते रहें, और इस कोस्मोस से जो भी ट्रांसिक हीलिंग हम प्राप्त कर सकते हैं उसे प्राप्त करने का हम प्रयास लगातार करते रहें। इसी के साथ मैं समाप्त करना चाहूंगा। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। Thank you so much, Dr. Sharma. That was beautiful. Another insight into what transic healing is about, and how it can be carried on, and how it has been there for ages and ages. And well, we went off our ways and we're getting back, as he mentioned rightfully, that everybody is trying to get back on track now to more towards a healthy atmosphere, a healthy healing, and transic healing is basically part of it that encompasses a lot of those things. So it seems like we have disconnection with Dr. Sharma? No, he's still here. Okay, I would like to invite Manjit, if you wanted to share any views on this, on transic healing. हाँ जी, आप सबका अभिनंदन
जी। स्वागत, नमस्कार। नमस्कार जी। पहले तो मैं इन दो शब्दों को ट्रांजिक हीलिंग हम्म, इन पर थोड़ा गौर करते हैं। ट्रांजिक जब हम शब्द को देखते हैं तो कुछ और शब्द दिमाग में आते हैं, जैसे कि ट्रांजिएंट, ट्रांसफॉर्मेशन इत्यादि हम्म, इत्यादि। और जहाँ तक मुझे लगता है, ये ट्रांजिट का मतलब है कि एक यात्रा। कैसी हम्म, यात्रा? अब हम अगर इसको हीलिंग को देखें, हीलिंग का मतलब ये है कि अवस्था, जहाँ जहाँ किसी भी अवस्था का सुधार हो। अक्सर एक बुरी अवस्था से अच्छी अवस्था में जाने को, ये जो सफर है, ये जो ट्रांजिएंट है, उसकी बात हो रही है। तो जो मुझे लगता है, हम्म, एक अस्वस्थ प्राणी की अवस्था है और वो स्वस्थ होने जा रहा है। ये जो सफर है, अस्वस्थ अवस्था से लेकर के स्वस्थ अवस्था तक का जो सफर है, उस सफर को हम ट्रांजिक हीलिंग कहते हैं। अब ट्रांजिक हीलिंग के बहुत सारे अ, अ, उपाय होते हैं, जैसे कि मेडिकल उपाय हैं, दवा दारू, व्यायाम है जैसे कि योगा, और स्पिरिचुअली इसके है, जो मुझे लगता है वो है बातचीत। बातचीत यानी कि वार्तालाप। डॉक्टर मोनिका ने दवा दारू के बारे में बात की है। डॉक्टर शर्मा जी ने बात की है कैसे न्यूमरोलॉजी के तहत ये हीलिंग होती है, कैसे मतलब हमारे नंबरों के आधार पर सारे ग्रह की स्थिति है, और उन ग्रह उस एक पर्टिकुलर समय में उन ग्रहों की क्या स्थिति है, उसके ऊपर आधार होकर के हमारे को वो अफेक्ट करते हैं, उसका प्रभाव होता है, और उनका उपाय भी नंबरों के आधार पर ही किया जाता है। लेकिन जो बात मैं करना चाहता हूँ, जो मुझे समझ में आता है, वो ये है कि ये जो ट्रांजिक हीलिंग है, ये जो अवस्था है, एक अस्वस्थ अवस्था से एक अच्छी और स्वास्थ्य अवस्था में जाने का जो सफर है, उसके बारे में बातचीत के दौरान, यानी कि वार्तालाप से कैसे ठीक किया जाता है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम आज का समय देखें तो बहुत सारे आधुनिक टेक्नोलॉजी के सहारे से जिंदगी की रफ्तार इतनी गति पकड़ लिया है कि किसी चीज का भी समय नहीं रहता। और अगर समय ना हो तो उसका स्वाद कहीं ना कहीं लुप्त हो जाता है, और अगर स्वाद ना हो तो उसका आनंद भी नहीं रहता है। तो ऐसी नीरस जिंदगी में हम जब गति पर इतना ध्यान देते हैं कि बाकी सब कुछ नीरस हो जाता है, तो हम कहीं ना कहीं अस्वस्थ महसूस करते हैं। इस अस्वस्थता का कई कई सारे रूप हैं। जैसे कि कोई डिप्रेशन में चला जाता है, कोई ज्यादा तबीयत खराब होती है तो पागलपन के दौरे पड़ते हैं, और कोई ऐसे हैं जो बिल्कुल ही दिमागी तौर से, इमोशनल तौर से और स्पिरिचुअल तौर से खोया हुआ होता है, तो वो पूर्ण तौर से ही पागल हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि मैं उस पर विचार करूं कि कैसे वार्तालाप या बातचीत से इसका सुधार हो सकता है, मेरा ये मानना है कि हमें कहीं ना कहीं इनके मूल कारण जो है उस पर भी गौर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर जड़ का पता चल जाए कि ये होता क्यों है, तो फिर हमारे बातचीत के जरिए उन जड़ों को अगर हम संबोधित करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें ऐसे उपाय मिलेंगे जिससे कि आदमी सामान्य हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। इसलिए अब मैं एक उदाहरण देता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरी किसी से बात हो रही है और वो शख्स कुछ ऐसी बातें कर रहा है जो मुझे पसंद नहीं आ रही, तो उस बातों का ये सीधा असर ये होगा कि मैं ना खुश हो जाऊंगा। जब ये ना खुश वाली बातें मुझे एक एक सज्जन के जरिए मिलती है,
तो कभी मैं इसको ग्रहण करता हूँ, कभी नजरअंदाज कर देता हूँ और भूल भी जाता हूँ। लेकिन अगर ये बात निरंतर मुझे दी जाए, चाहे वो मेरे परिवार में हो, चाहे वो मेरे काम में हो, चाहे वो समाज में हो, तो कहीं ना कहीं उसका असर इतना होता है कि कहीं ना कहीं ये बात घर करने लग जाती है। जब ये बात घर करने लग जाती है तो जो मुझे पहले पसंद नहीं थी, अब उसके कारण मैं उदास रहना लगता हूँ। जब ये उदासी काफी लंबे समय तक चलती रहती है तो ये डिप्रेशन का रूप धारण कर लेती है। जब डिप्रेशन बहुत ज्यादा होता है तो हमें पागलपन के दौरे पड़ते हैं, और अगर इसका उपाय ना मिले तो कहीं ना कहीं पागलपन लंबे समय के लिए चले तो पूर्ण पागल भी हो जाता है इंसान, और फिर मुड़ना काफी दिक्कत मुश्किल हो जाता है। तो ये मूल कारण है। अभी हम आए दिन खबर पाते हैं कि फलाने मुल्क में फलाने बंदे ने इतने लोगों को बेदोष लोगों को मार गिराया, और हाँ, हालांकि वो खुद भी अंत में उसी वायलेंस का शिकार हो जाता है, लेकिन मूल कारण ये है कि ऐसा हो रहा है। अभी इतनी कहने को हमने इतनी तरक्की करी है, हाँ, साइंस के जरिए हमने तरक्की करी है, लेकिन अगर हम पूर्ण मनुष्य का जीवन को देखें तो मुझे लगता है कि हमने जितनी तरक्की करी है उससे ज्यादा हम पिछड़ भी गए हैं। पिछड़ इसलिए गए हैं क्योंकि जो आधुनिकता के जरिए हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम आगे बढ़ते हुए अपने बहुत कुछ पीछे छोड़ जाते हैं। और वो जो चीजें हम पीछे छोड़ जाते हैं, जो संस्कार, जो समय, जो लुफ्त इत्यादि इत्यादि, वो हमारे जीवन से कहीं ना कहीं कम होता जाता है, और ये हमारे दुखों का कारण बन जाता है। और जब दुख जीवन में ज्यादा हो तो हम नहीं कह सकते कि हम कामयाब हैं, क्योंकि सुखी जीवन ही कामयाब जीवन का मापदंड है। इसलिए मेरा ये मानना है कि बातचीत के जरिए हम उन चीजों को एड्रेस करें जो ये ऐसे अवस्थाओं को जन्म देती है। और कहीं ना कहीं मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सब इसमें भागीदारी हैं, क्योंकि कभी कभी हमारे सामने ऐसा कुछ होता है और हम चुपचाप कहते हैं कि भाई हमें क्या लेना देना, हम कुछ नहीं बोलते हैं। और कल जो किसी के पास हो रहा है वो संभव हमारे साथ भी हो सकता है। जैसे कि कबीर जी ने कहा है कि भाई, मुझे पूरा दोहा याद नहीं है, लेकिन वो कहते हैं, आज जो पड़ोसी के साथ हो रहा है कल तुम्हारे साथ भी होगा। तो इसलिए अगर हम खामोश रहते हैं तो वो हमारा योगदान है, वो इनडायरेक्ट योगदान है, जिसके जरिए ऐसी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और उसका फल हम सबको भोगना पड़ता है। कभी कभी हमारे निर्दोष प्रियजन अपनी जान गंवा देते हैं ऐसे लोगों के हाथों से, जो खुद बीमार हैं, जो खुद अस्वस्थ हैं और जिन्हें खुद सहायता की जरूरत है। तो ये एक संकल्प है जो हम सबको मिलकर के समझना है। जब हम समझ जाएंगे तो इसका उपाय कहीं ना कहीं समय लगेगा लेकिन निकल जाएगा। तो मूल कारण मुझे जो ये लग रहा था कि समय समय नहीं है, समय नहीं देते हम किसी भी चीज को। जैसे एक और उदाहरण मैं दूं, जब मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना क्या खाता हूँ, मैं तो वो लगभग निगल ही जाता हूँ, 2 मिनट में खा भी बैठता हूँ। कहा जाता है कि कम से कम 20 मिनट लेना चाहिए, क्योंकि पेट में गया हुआ अन्न जब तक वो प्रोसेस होकर के दिमाग में जाएगा कि हमारा पेट भर गया है, उसमें 20 मिनट लगते हैं। और अगर मैं 2 मिनट में ही खाना खा लेता हूँ, यानी कि उगल लेता हूँ, तो वो खाना खाना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो मैं ज्यादा खा लेता हूँ, दूसरा उसका जो लुफ्त है, जो आनंद है, जो स्वाद है, जो मिठास है, जो सेटिस्फैक्शन है, उससे मैं कहीं ना कहीं वांझा रह जाता हूँ। तो ये जस्ट एक उदाहरण है। और तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि असली जब हमें पता चल जाएगा कि कारण क्या है, फिर हमारे बातचीत में या वार्तालाप में सुधार आ जाएगा। कैसे? कि हम किसके साथ क्या बात कर रहे हैं,
कब किसके साथ कैसी बातें कर रहे हैं, कैसी विचारधारा हम उनके साथ शेयर कर रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा माइंडफुल हो जाएंगे, थोड़ा ध्यान देंगे कि भाई हमारी बात का किसी पर कैसा असर हो सकता है, तो हमारे शब्दों का चयन बढ़िया हो जाएगा और हम पॉजिटिव यानी कि अच्छी बातें करेंगे, जिससे अगले के ऊपर उसका प्रभाव भी अच्छा और सही पड़ेगा। फिर लोग हमारी बातों को पसंद करेंगे। जो बातें अगर हम अगर ऐसी बात करेंगे जिससे कि आपको अच्छा लगेगा, तो फिर आप सुनेंगे, सुनेंगे ही नहीं बल्कि उस पर अपने जीवन को आधार करने की कोशिश करेंगे। फिर कहेंगे कि भाई इस शख्स के साथ हमें उठना बैठना अच्छा लगता है। आपका आत्मबल बढ़ेगा और आप सही दिशा पर चल पड़ेंगे। तो ऐसे जो ऐसी बीमारियों के शिकार हैं, उनके भी दो मुख्य कारण होते हैं। एक तो ये हो गया कि उन्हें मौका नहीं दिया जाता, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें घर में भी दुकारा जाता है, बाजार में भी दुकारा जाता है, काम काज में भी उनको शामिल नहीं करते हैं और समाज वो पूरे तौर पे उसको दुकार देते हैं। तो ऐसे में वो डिप्रेस हो जाते हैं। जब वो डिप्रेस हो जाते हैं तो कुछ लोगों का जो डिप्रेशन एक्यूट हो जाता है, चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तो फिर वो या तो आत्महत्या कर लेते हैं या फिर वो कहते हैं कि भाई हम तो जाएंगे ही, हम साथ में औरों को भी लेकर जाएंगे। और ये वास्तविक में हम देख रहे हैं, ऐसा ही होता है। तो इसको कैसे ठीक किया जाए? इसको ठीक करने का तरीका यही है कि हम सबको ये बीड़ा उठाना पड़ेगा। और जब भी हम ऐसी कुछ निशानियां होती हैं जिससे हमें पता लगता है कि इस बच्चे की सोच विचार, इस शख्स की सोच विचार कुछ साधारण नहीं है, कहीं ये गलत राह पर तो नहीं जा रहा है, और अगर हमें ऐसा लगता है तो हमें उसके साथ बातचीत करनी चाहिए, वार्तालाप करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि भाई इस बात को नजरअंदाज करो, इस बात को अपने दिल पर घर मत करने दो, इस बात से उभरने का ये तरीका है। अपना दुख बांटो। अगर कोई तुम्हारे साथ गलत कर रहा है तो उसका विरोध करो। विरोध करने के भी अच्छे तरीके भी हैं, ऐसी बात नहीं है। और ये सब बातें मिला जुला करके जब हम एक अभ्यास करते हैं तो इससे हम उभर सकते हैं। और इसको एक एक और जो मुझे अपने जीवन काल में ही नहीं और वैसे मैंने देखा भी है, प्रार्थना प्रार्थना जो है एक बहुत बड़ा टूल है, जिसके जरिए हम ना सिर्फ अपना अंतःकरण को समझाते हैं बल्कि समाज में भी उठना बैठने के तौर तरीके और विचारों पर एक बांध लगाते हैं, जिसके जरिए हम अपने जीवन को सुधारते हैं और सही दिशा देते हैं। तो मेरा यही मानना है कि ट्रांजिक हीलिंग जो है वो एक अवस्था है जिसमें शब्दों के जरिए, जिसमें वार्तालाप के जरिए, बातचीत के जरिए एक अस्वस्थ इंसान को कैसे स्वस्थ और फिर से बहाल किया जाता है, उसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए। उसके ऊपर मेरे ये विचार हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब आप सबको इसमें से लाभ मिलेगा और हम सब आगे चल करके इससे लाभ उठाते हुए इस दुनिया को और भी सुंदर और जीने लायक बना सकेंगे। शुक्रिया जनाब, धन्यवाद। थैंक यू मंजीत जी, आपने बहुत अच्छा कहा और इसको बहुत ही डिटेल्स में बताया है। एंड दैट इज ट्रूथ। तो ऐसा होता है और हमें इसके ऊपर ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि ये ऐसी एक चीज है कि जो एक्सपीरियंस से जुड़ी हुई है। तो इसके बारे में हम इतना कह नहीं सकते हैं, लेकिन इसका एक्सपीरियंस जरूरी है। तो इसके बारे में जरूर वार्तालाप के बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे, इसके बारे में भी रखेंगे वेबिनार्स। तो अभी मैं जयश्री जी से पूछना चाहूंगी कि उनके आपने ट्रांजिक हीलिंग के बारे में सुना, तो आपके जीवन में कोई कभी ऐसा आपने किसी के साथ होता हुआ देखा है कि या कोई ट्रांजिक हीलिंग में गया हो या किसी को जरूरत हो? आपका इस पर क्या
इस पर क्या विचार है? आप म्यूट पे हैं। अच्छा ठीक है, अभी चलिए बताएं प्लीज। मुझे इतना नॉलेज नहीं है और इतना एक्सपीरियंस नहीं है इस बात का, जी। लेकिन हाँ, मंजित जी ने कहा वो उससे मैं 100% सहमत हूँ। क्योंकि हमारा समाज घर हम खुद सब लोग जो भी किसी की कमी हो तो उस पर हंसते हैं, उसे एनकरेज नहीं करते, जी। तो और उसके ऊपर उसे कुछ नया सीखने का, नया करने का मौका भी नहीं देते। कभी कभी उसे खुद इंडिपेंडेंट बनाने में हम हेल्प नहीं करते, उसके बदले हम उसका मजाक उड़ाते हैं, तो सब इसी वजह से उसकी बीमारियां डेवलप होती है ज्यादा। जी। हमको सभी को सबके साथ अच्छे से बर्ताव करना चाहिए। हम सब इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम किसी का अपमान कर देते हैं, किसी को कुछ गलत बोल देते हैं, किसी को एनकरेज नहीं करते, उसे डिस्करेज करते हैं। कहीं ना कहीं ये सब हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम सब इसे इस समाज को, सब नागरिक को जी। सुधारने की जितना हम कर सके उतनी हमें कोशिश करनी चाहिए। ये बहुत ही अच्छा सुझाव दिया इन्होंने और बहुत ही अच्छी लगी सबकी बातें, तो इससे नया नया जानने को भी मिलता है। थैंक यू बिल्कुल। सो मच। नो प्रॉब्लम, थैंक यू जयश्री जी। हिना, आप हैं अभी हमारे साथ? जी जी, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। नमस्ते मैं जी। सबकी सुन रही थी कि जी। लाइक क्या नहीं, बहुत बहुत अच्छा बोला सबने। लाइक मैं जयश्री आंटी जी से बिल्कुल सा सहमत हूँ कि हम लाइक पॉइंट आउट कर देते हैं अगले को कि यार तूने हाँ। ये नहीं किया मेरे को, आपने गलत किया मेरे साथ, पर हम उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड नहीं करते, पर्सन को अंडरस्टैंड नहीं करते। जैसे हम बोलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैंने उसकी हेल्प की, उसने मेरी हेल्प नहीं की, दैट्स मीन कि हमारी एक्सपेक्टेशंस उससे थी कि वो हमारी हेल्प करेगा। ये हमारी मिस्टेक है, हाँ, अगले सही। दूसरे की मिस्टेक नहीं है। हमें इसे ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि उसने हमारी हेल्प क्यों नहीं की, रेदर देन पॉइंट आउट करने के लिए कि उसकी उस टाइम में सिचुएशन क्या थी, उसके माइंड में क्या चल रहा है, कि हमें नहीं पता। हमें नहीं पता कि उसके माइंड में क्या चल रहा है। हम उसके साथ बैठेंगे, आप उस टाइम पे ऐसी हेल्प कर सकते थे, लाइक हम पूछ सकते हैं कि आपने क्यों नहीं की। मे बी वो इस तरह से हमें हाँ। लाइक बता सके कि आपने हेल्प क्यों नहीं की, मैं किस सिचुएशन में था, तो हम अंडरस्टैंड कर सके। जैसे मंजीत अंकल जी ने बोला कि दैट्स मीन कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि सबकी अपने अपना एक्सपीरियंस होता है, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है। कम्युनिकेशन दैट्स मीन मैंने कुछ और सोचा, अगले ने कुछ और सोचा, मैंने बोला ही नहीं उनको कि मैंने ये सोचा था, अगले ने कुछ और सोच लिया। अगले ने कुछ बोला और मैंने सोचा अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग, मैंने सोचा कि उसने मे बी ये सोच लिया होगा, पर कम्युनिकेशन हुई नहीं। कम्युनिकेशन होगी तो हमें पता लगेगा व्हाट इज रॉन्ग और व्हाट इज राइट, उस टाइम में सिचुएशन क्या थी। दो पर्सन ने डिफरेंट डिफरेंट थिंक किया, पर ये नहीं सोचा कि उसने क्या थिंक किया और मैंने क्या थिंक किया। लाइक ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, यस। बिकॉज हम अपने अकॉर्डिंग के अपनी थिंकिंग अकॉर्डिंग के हम दूसरों को जज करते हैं। और जब हम दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो हम जब उनसे पूछते हैं, तो हम उनकी राय जब लेते हैं, तो समटाइम हम उनके साथ एग्री हो जाते हैं। जी, ये भी ठीक है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। एंड सेकंड वन इज, जैसे आपने बोला कि सोशली, यस, सोशली होना बहुत जरूरी है। समटाइम हम घर में बैठे रहते हैं, बोलते हैं ना वो खाली घर शैतान का घर, वो घर है या खाली दिमाग शांत अगर वो, हम जैसे घर में बैठते हैं, हम सोचते रहते हैं उसने मुझे जैसे ऐसे बोला, उसने मुझे ऐसे बोला, उसने मुझे ऐसे बोला। जब हम बाहर जाते हैं, सोशली होते हैं, लोगों से मिलते हैं, देखते हैं कि नहीं हम हमारे साथ ही ये सब नहीं हो रहा है, सबके साथ ही ये हो रहा है, तो हमें मोटिवेट मिलते हैं कि नहीं, हम ही नहीं सिर्फ इस फेज से गुजर रहे हैं, सभी फेज से गुजर रहे हैं, पर सभी कैसे हैंडल कर रहे हैं, उससे हम हील कर रहे हैं कि अगर वो हैंडल कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते हैंडल। दैट्स मीन हम अपने आप अंदर सेल्फ मोटिवेट करते हैं। वो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बचपन में स्टोरी पढ़ी थी बुक में कि एक बास्केट में अगर हम एक सेब गला सा होता है, गला दैट्स मीन तो वो सब सेबों को खराब कर देता है।
अगर हम एक गला हुआ सेब निकाल दें तो वो सब सेब सेफ हो जाते हैं। Yes. दैट्स मीन कि अगर हम पॉजिटिव लोगों के बीच में बैठेंगे तो हमें लाइक पॉजिटिविटी मिलेगी, अगर हम नेगेटिव लोग से मिलेंगे तो हमें नेगेटिविटी मिलेगी। दैट्स मीन कि अगर हम दिन में 10 लोगों से मिलते हैं, 3 नेगेटिव है और 7 पॉजिटिव है, 7 पॉजिटिव तो हमें देते हैं पर हम हमेशा माइंड में 3 लोगों की बातें याद रहती है कि उन्होंने मुझे सही। ऐसे बोला था, सम टाइम वो भी हो सकता है। पर हम हम्म, 7 लोगों से पूछते हाँ ये भी हो सकता है, पर हमेशा हमारे मन में डर रहता है कि नहीं यार उन्होंने मुझे ऐसे बोला था, 3 लोगों ने, ऐसा भी हो सकता है। लाइक हम हील करते हैं अपने आप को, दैट्स मीन लाइक ट्रांसफर करते हैं, हम्म, ट्रांसिक हीलिंग करते हैं। बट सम टाइम कुछ नेगेटिव लोगों की वजह से हम अपनी एक्सपेक्टेशंस, अपना लाइक हम्म, पीस ऑफ माइंड, लाइक बैलेंस अपना खो देते हैं। तो हम सम टाइम एट ए टाइम रिएक्ट कर जाते हैं, पर हम ये नहीं सोचते कि नहीं ऐसा भी तो हो सकता था। लाइक एवरी कॉइन हैज अ टू साइड, पॉजिटिव हम्म, एंड नेगेटिव। हमें पॉजिटिव भी लेना चाहिए, नेगेटिव भी, पर मोस्टली हमें पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, बिकॉज हमें ये नहीं पता कि दूसरे की थिंकिंग क्या है। सो लाइक मैं मंजीत अंकल जी, मैं जयश्री आंटी जी से बिल्कुल लाइक फुली एग्री करती हूँ कि लाइक या कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। थैंक यू। yes. Yeah, no, thank you, Hina. That was beautiful. It is definitely a very psychological phenomenon, because trance itself is all basically it's mental, though the physical things they do affect it, influence it, environment influence it, everything. So yes, and part of the psychological phenomena, it's very much depends on communication as well. And you very well said that we should stick around with the positive people and not dwell so much on the negativity. That is well said. It's Jaisi Sangat, Vaisi Rangat. वैसी रंगत, सही बात है And जी। that, एक्चुअली एवरीबॉडी uh-huh. हैज देयर ओन एक्सपीरियंस, किसी ने अपने Yeah. एक्सपीरियंस से बैड चीज एक्सपीरियंस की, Hmm. किसी ने वो से पॉजिटिव। Yeah. लाइक सबका अपना 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 Hmm. एक्सपीरियंस होता है, वो Yeah. हम पे डिपेंड होता है कि हमने पॉजिटिव सीखनी है कि Hmm. नेगेटिव सीखनी है। Signa. पर ये नहीं बोल सकते कि हमने नेगेटिव सीखी है तो हमें ये पूछना चाहिए कि हाँ उसको कुछ बैड एक्सपीरियंस होगा, Huh. उसको कुछ बैड Huh. एक्सपीरियंस होगा तभी Yeah. उसकी बैड लाइक Hmm. बैड थिंकिंग बनी है। कोई अपने आप को ऐसा नहीं बोलता कि मैं बैड हूँ। हाँ, सब सही अपनी बात है। तरफ से सब अपनी तरफ से बेस्ट ही देते हैं। हम्म, कोई अपने आप को ये नहीं बोलेगा कि नहीं नहीं मैंने तो ये बाय मिस्टेक की। नो नो, कोई बाय मिस्टेक लाइक कोई जान के नहीं करता, हाँ, सही है। तो एक्सपीरियंस से ही सब करते हैं। तो हमें जी प्रिकॉशंस ले लेनी चाहिए, कुछ उससे जी सीख लेना चाहिए, लेकिन जी जैसे आगे बढ़ने के लिए बोलते पॉजिटिव चाहिए। जी जैसे बोलते हैं ना कि हमें आगे बढ़ने के लिए जैसे सक्सेसफुल लोगों की स्टोरीज पढ़नी चाहिए, हम्म, और पेशेंस रखने के लिए हमें नीचे लोगों की देखनी चाहिए कि जी वो जी। सक्सेस कैसे हुआ, उनकी बायोग्राफी हाँ, पढ़ो। जैसे सी हम बोलते हैं कि मेरे पास साइकिल है, उसके पास कार है, हम ये भी तो देख सकते हैं कि किसी के पास साइकिल भी नहीं है, भी नहीं है। हाँ, किसी के पास साइकिल भी नहीं है, पर हमारे पास साइकिल तो है। हाँ, उसने कार कैसे खरीदी उसकी सारी बायोग्राफी पढ़ो। हम्म, हमें दोनों तरफ देखना चाहिए, अपने ऊपर बिल्कुल। वाले को भी देखना चाहिए, अपने नीचे वाले को भी। हमें पेशेंस रखने के लिए हमें नीचे वाले को देखना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए हमें ऊपर वाले को देखना चाहिए कि उसने ये कार कैसे खरीदी और Yeah, उसने क्या स्ट्रगल की। yeah, जी yeah. बस यही था। थैंक यू। Say, okay, thank you, Hina. So thank you everybody. Thank you Manjit जी और जयश्री जी। डॉक्टर शर्मा को निकलना पड़ा, उनका कनेक्शन नहीं सही से हो रहा था और इसलिए वो पहले disconnect हो गए। तो anyways, thank you everybody for joining today's webinar and next webinar. So we'll come back to these मैं कुछ psychological बोलना things चाहता later. हूँ। Okay, please. Yeah. So the next webinar will do it on a botanical medicine. Okay. मोनिका जी, हाँ, एक मिनट मंजीत जी. So next webinar will be on botanical medicine, and the date will be July 16th. Okay, so next Saturday, same time on Zoom, and that is about the medicine plants, medicine from plants, etc. Right? Okay, Manjit ji, please go ahead. हाँ, मुझे हिना जी के विचारों से कुछ
एक बात बहुत अच्छी लगी जो मैं उस बात को थोड़ा सा और आगे लेके जाना चाहता हूँ। जैसे इन्होंने बताया कि अगर हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो अगर वो हमारे लिए नहीं कुछ करता तो हमारे मन में विचार आता है कि भाई एक्सपेक्टेशंस आती हैं कि भाई मैंने उसका भला किया, उसने मेरा नहीं किया, और वही जो विचार है वो मेरे दुख का कारण बन जाता है। और वो दुख कभी आगे अगर बढ़ता जाता है तो इन तरह तरह की बीमारियों को जन्म देता है। तो बचपन से हमने सीखा है, भगवत गीता में भी ये आया है कि नेकी कर दरिया में डाल। उसी आधार पर ये विचार है कि अगर हम सेवा कर रहे हैं, अब आजकल सुनने में आता है कि भाई निष्काम सेवा, नहीं, निष्काम सेवा कुछ नहीं होता। सेवा जो भी है वो हमेशा निष्काम ही होती है, नहीं तो वो सेवा नहीं होती। नहीं होती। अगर हम कुछ करेंगे और उसके बदले में कुछ चाहेंगे तो फिर वो सेवा नहीं है, वो स्वार्थ है। और स्वार्थ में चाहत होती है कि बदले में हमें कुछ मिले। अगर मिल जाता है तो भी प्रॉब्लम है, और नहीं मिलता तो ज्यादा प्रॉब्लम है। कैसे प्रॉब्लम है? अगर हमें मिल जाता है तो हमारी आकांक्षा और भी बढ़ जाती है, हम चाहते हैं कि हमें ऐसा लाभ और भी हो। और अगर कहीं ना कहीं आगे जाकर के अगर वो नहीं आता है या कम होता है, फिर भी हमें दुख का कारण बन जाता है। और अगर बिल्कुल ही ना हो तो फिर वो दुख का कारण अधिक होता है। तो इससे कैसे उभरा जाए? इसको उभरने का तरीका वो यही है, जैसे कि ईश्वर है, भगवान है, अल्लाह है, ये हमें देता है। जान को देत, अनजान को देत, जो माने उसे भी देत, जो ना माने उसे भी देत। ईश्वर हम सबसे प्यार करते हैं, जो हाँ उसकी आराधना करते हैं उनको भी वो देता है। जो अपनी पीठ करके बैठे हैं उसके 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 सामने, प्रभु के सामने, अल्लाह के सामने, वाहिगुरु के सामने, गॉड के सामने, उसको भी वो देता है। तो अगर हमें किसी के लिए कुछ करना है तो हमें ये गुण उस प्रभु से अपनाना चाहिए कि भाई नेकी कर दरिया में डाल, भूल जा कि तूने कभी किसी के लिए कुछ किया भी है। तब जा करके हमें क्या मिलेगा? हमें एक सुकून मिलेगा, एक खुशी मिलेगी जो दिन भर दिन बढ़ती ही जाएगी। अगर हम ऐसे छोटे छोटे कार्य करते रहेंगे तो हमारा जीवन खुशियों से भर जाएगा, और यही हम चाहते हैं कि हमारा जीवन खुशियों से भर जाए। ये छोटे छोटे क्या कहते हैं, सहायक कार्य अगर हम किसी के लिए करते हैं और करके उसको भूल जाते हैं तो हम हमेशा खुश रहेंगे, ऐसा मुझे अनुभव है। और ऐसा ही मैं चलने की कोशिश करता हूँ। और मुख्य कारण भी यही है कि जैसे जो प्रोग्राम आप करते हैं, हमारे इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। हम इसलिए आते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ हम वार्तालाप करके कुछ ऐसे बातें कर जाते हैं जो किसी को भा जाए और वो उसके मन में इस तरह से ग्रहण कर जाए कि उसके जीवन में सुधार हो जाए। तो इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। आप खुश हो जाएं, इसी में हमारी खुशी है। और इसीलिए हम सब इस बात से बहुत सहमत हैं और एक मिलजुल कर रहने वाली खुशियों वाली जिंदगी की तरफ हम बढ़े। तो ये जो आजकल के आधुनिक बीमारियां हैं उससे हमें छुटकारा मिल सकता है, ऐसा मेरा मानना है। शुक्रिया जी। अच्छा जी, मंजीत जी, थैंक यू, आपने बात सही कहा। तो मानसिक बीमारियों से छुटकारा ये आजकल की प्रॉब्लम है, क्योंकि हम अपने आप में ही बहुत सीमित से हो गए हैं, क्योंकि एक तो कोविड के कारण और एक बिजी होने के कारण, और सब लोग पैसे की तरफ दौड़ रहे हैं, तो हमें वो भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो हमारा जो घेरा है सोशल लाइफ का है वो कम से कम होता जा रहा है, और कम इंटरेक्शन से ये मानसिक बीमारियां ज्यादा उत्पन्न होती हैं। और एक और बात, जो बात तो सभी ने उस पर टच किया, वो था विवेक, कि हमें अपने हिसाब से सोचना चाहिए। इन्फ्लुएंस तो होती है। देखिए, जब हम
छोटे होते हैं, हमारे पेरेंट्स की इन्फ्लुएंस होती है, हमारे भाई बहनों की होती है, रिश्तेदारों की, फिर फ्रेंड्स, ये वो, स्कूल में, कॉलेज जाओ, टीचर्स की, सबकी इन्फ्लुएंस होती है। और हमें सबसे अच्छा ही लेना है और विवेक को हमेशा जागृत रखना है ताकि हम अपने खुद से सोच सके। और इसके लिए भी हीलिंग बहुत जरूरी है। और ट्रांजिक हीलिंग, फॉर्म ऑफ सेल्फ हीलिंग, just perfect. So you don't have to do anything. So thank you everybody for joining today's webinar, and see you all again. Yeah, today it couldn't go on Facebook because I think there's internet problem from Bell and Rogers and everything, and it's affecting all of Canada. So anyways, it'll be posted online, and we'll see you all next Saturday, July 16th at 9:30 a.m. Okay. See that. Thank Okay. you. नमस्कार जी। शुक्रिया, शुक्रिया जी। धन्यवाद। धन्यवाद जी। Okay. Bye bye.